Welcome students, good morning. This is Rakesh sir here from the class 8 that will start at the online session from the students who are studying in the class 8. Now there is a chapter 1 which is belongs to the part of NCERT, which is a real number. Now before discussing these topics, let's discussing slightly conversation. Now in these times of pandemic, there is a lots of we seen about the seen and heard about the COVID. So it is a pandemic situation. So I hope you and your family are be in a form of good health. So I requested you to stay safe and stay home. And by using in a stay home, so start to be learn to the online digital medium of our YouTube sessions of a video lectures, that is a real number. Now before discussing of this real number, we slightly discuss about the number system which you have to study into the previous classes. Like we'll be discussing about the natural numbers, whole numbers, set of integers, real numbers, rational numbers, irrational numbers, complex numbers. These all are you have to discussing into the previous classes. For example, natural number, that is a positive set of integers which doesn't include the zero, so it is represented by the n. If you are moving ahead, whole number, it is also a set of positive integers but it includes the 0. So 0 is a part of the whole number but 0 is not a part of natural number. So all the elements or members of a natural number, it is a part of the whole number. So it both are called as a subset. N is a subset of whole number. Slightly we move ahead, there is a set of integers which is represented by the z, which is a part of positive, negative as well as 0. So negative numbers, that is a part of the set of integers. Well, moving ahead, there is a rational numbers which is a part of numerator denominator. It should be a 0 positive, it should be a positive rational number or negative rational number or 0 rational number. When it should be 0 rational number, okay, when the numerator will be 0. So it is generally you have discussing into the previous classes. Also, general description how this type of number system that can be represented onto the number line, that also you have to discussing. Okay, the number system like I have to represent 5 by 2 or I have to represent it -7 or I have to represent it -9. So how these numbers are generally represented onto the number line, or maybe the rational numbers like I have to represent it 5 by 6, 3 by 4, 1 by 2. These all other numbers are easily represented onto the number line. So when we use the number lines, there is a origin point O where the right hand side is generally called as a positive numbers, while left hand side of origin that is called as a negative numbers. So before discussing these number systems or represented onto the number line, you have also discussing some of the properties of these integers like closure properties, there will associative properties, there is also distributive properties. Okay, so these all are the property, closure properties, associative property, distributive property. Generally this type of the properties you have to be discussing in the previous classes. Okay, also you have discussing about some of the property like additive inverse property, multiplicative inverse property. ये सारे टॉपिक्स दैट यू हैव प्रीवियसली डिस्कसिंग इन द प्रीवियस क्लास. जैसे मान लीजिए एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी में हमें आंसर 0 आना चाहिए. एडिटिव प्रॉपर्टी दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एडिशन इज 0. अगर किसी भी वैल्यूज के अंदर अगर आप 0 को ऐड करेंगे तो आंसर ऑलवेज भी 0. फॉर एग्जांपल 5 के अंदर 0 ऐड करो तो 5 मिलेगा. सो दैट इज कॉल्ड एडिटिव नंबर. तो एडिटिव इनवर्स मतलब क्या, सपोज पॉजिटिव नंबर दिया है तो उसमें नेगेटिव नंबर को ऐड कीजिए तो आंसर 0 मिलना चाहिए. एट द एंड ऑफ द टाइम एडिटिव इनवर्स दैट गिव्स यू 0. उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मल्टीप्लिकेशन के लिए कांस्टेंट नंबर होता है 1. सपोज 5 into 1 करो तो 5, यानी 1 इज द कांस्टेंट फॉर द मल्टीप्लिकेटिव. तो मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको मुझे आंसर 1 मिलना चाहिए. सपोज 5 है, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, दैट इज 1/5. ओके, तो ये सारे टर्म्स जो हैं आपने प्रीवियसली कॉन्सेप्ट जो है उसमें समझे हुए हैं. आपने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है. ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने पहले भी वहाँ पे डिस्कशन की हुई है, जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एक आती है जिसमें आप कोई भी 2 नंबर को ऐड करोगे तो आंसर राइट हैंड साइड में सेम मिलेगा. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं. पहला एक डिस्कशन करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दैट शुड बी ओनली एप्लीकेबल ऑन टू द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. फॉर एग्जाम्पल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कशन करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, सो हाउ दैट कैन बी वर्क. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ करता हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
Now for commutative property, that should be only applicable the numbers in a form of addition and the multiplication. For example, a plus b is equal to b plus a, और a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. केवल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हमें क्या करना होता है कि इसकी वैल्यूज जो होती है उसको चेंज करना है. ए और बी की वैल्यू है, अगर बी और ए को ऐड करिए तो भी आंसर सेम मिलेगा. ए और बी की वैल्यू में ए और बी को मल्टीप्लाई कीजिए, सामने आप बी और ए को मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपको सेम ही मिलेगा. दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ए केवल किसके लिए पॉसिबल है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए. It should not be possible on a subtraction or division. Subtraction a minus b is equal to b minus a, it's not possible, okay? Or a divided by is equal to b divided by, it is also give the different answer. So in a general perspective forms, if we are doing the form if a plus b is equal to b plus a or a into b is equal to b into a. For example, यहाँ पे एक example लेते हैं, like a is equal to I'll take 3 and b is equal to I will take 4. A is equal to 3 and b equal to 4. Then a plus b is equal to 3 plus 4 is equal to 7 and b plus a is equal to 4 plus 3 is equal to 7. Both answer will be same. Similarly for the multiplication, a into b is equal to b into a. So 3 into 4 is equal to 4 into 3, 12 is equal to 12. So it should be only possible numbers who are in a form of addition and multiplication. It should not be possible for the subtraction and division. So we have to find out the values, or we have to determine the values throughout the using properties. अलग अलग properties का use करके value determine करना, ये भी आपने पहले के कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है, दैट इज ऑलरेडी. तो मैं वो सारे टॉपिक्स को फिर से रिवाइज करने में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है. पर मैं जनरली आपको उसका रूल समझा दिया. एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है. अभी मान लीजिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में डिस्कशन करते हैं. एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के अंदर वहाँ पे 3 अलग अलग टर्म्स होंगे ए बी सी के. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर हमें यूज़ करने हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए हमारे पास 3 अलग अलग टर्म्स होंगे. लेट ए बी और सी, 3 अलग अलग टर्म्स हमारे पास होंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए. तीनों 3 के अंदर हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म यूज़ होना होगा, ग्रुप बनाना होगा. लेट ए इंटू बी इंटू सी, राइट. यहाँ पे 3 अलग अलग फॉर्मेशन में मैंने वैल्यूज़ लिए, 3 अलग अलग वैल्यू ए बी और सी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी. ये भी केवल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए ही पॉसिबल है, नॉट बीन पॉसिबल फॉर डिवीजन और सब्ट्रैक्शन. तो अगर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप यूज़ करें तो ए इंटू बी इंटू सी, तो यहाँ पे बी और सी का एसोसिएशन किया है, 2 का आपने ग्रुप बनाया है. इस ग्रुप को यहाँ पे चेंज कर देंगे तो लिख देंगे ए इंटू बी इंटू सी, राइट. सिमिलरली प्लस के लिए भी आप चेक करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. यहाँ पे आप देखिए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने बी और सी को एसोसिएट किया था लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपने ए इंडिविजुअल था तो ए और बी को एसोसिएट किया है, सी को आपने रिलीज किया है. तो इन दोनों सिनारियोज के अंदर देखेंगे तो भी आंसर आपको सेम मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करके देखते हैं. लेट ए इज इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 4. ए इज इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 4. अप्लाई करते हैं यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4. चेक करिए 3 4 जा, पहले तो आपको स्मॉल ब्रैकेट रिलीज करना होगा. 3 4 जा 12, 12 इंटू 2 24. सिमिलरली 2 3 जा 6, 6 4 जा 24. बोथ नंबर्स आर सेम. सिमिलरली एडिशन प्रॉपर्टी के लिए आप चेक करेंगे. एडिशन प्रॉपर्टी 2 प्लस इन ब्रैकेट 3 प्लस 4, राइट. सिमिलरली 2 प्लस 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9. बोथ आर सेम. So that is called associative property. Now associative property having a same sign, there is no any sign change. अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन ही रहेगा, अगर एडिशन है तो एडिशन ही रहेगा. देर इज नो एनी चेंज इन टू द साइन ऑफ दिस नंबर्स, ओके. बट
अगर यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मैं चेंज करता हूँ, उसको मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करता हूँ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होगा पूरा इससे डिफरेंट होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अगर आप डिस्कशन करोगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पूरा यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेशन में कंसिडर होगा। तो इसमें दो चीज़ आता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन ऑन एडिशन और ओवर मल्टीप्लिकेशन ऑन सब्ट्रैक्शन करना है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के लिए अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे a इंटू बी प्लस सी हमें लिखना पड़ेगा, तो a इंटू बी प्लस ए इंटू सी यहाँ पे हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बाहर होगा, एडिशन आपका अंदर की तरफ होगा। वैसे सिचुएशन में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ that is using the different type of associative different type of property, we have to find out the value. So next question, using appropriate property, find value, using appropriate property find value। देखो ऐसे टाइप्स के भी क्वेश्चंस आपने पहले डिस्कशन किए होंगे कि अलग अलग टाइप्स के प्रॉपर्टीज का यूज़ करके हमें वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, जिसमें आप अलग अलग वैल्यूज़ का कंसिडर कर सकते हैं। लेट एग्जांपल -2/3 इंटू 3/4, ये एग्जांपल लेते हैं, -2/3 इंटू 3/5। देखो अलग अलग यहाँ पे ग्रुप्स आपको अरेंज करने हैं, उसके हिसाब से +5/2 -3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6 ऐसा एक क्वेश्चन आपको दिया है। दैट इज सिंपल एग्जांपल। अभी ये जो एग्जांपल मैंने आपको लिखा है उसमें -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6 ऐसे हमारे पास वैल्यू है। अभी मुझे क्या करना है, इस प्रॉपरली वैल्यूज़ को मुझे अरेंज करना है। जहाँ पे मुझे जो वैल्यूज़ दिखेगी उसको पहले तो अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी हैव टू नीड टू बी अरेंज। जैसे -2/3 है इंटू 3/5 है, फिर -3/2 है, उसको आगे की तरफ मूव करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाएगा, इंटू 1/6 और प्लस 5/2, ऐसे अलग अलग वैल्यूज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सो पहले तो इसको हम रीग्रुप करेंगे बाय रीग्रुपिंग, तो ताकि ईजी हो जाए। रीग्रुप को करेंगे ताकि पूरा सम एकदम इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। सो देयरफॉर -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। ठीक है, प्रॉपरली पहले आपने उसको रीअरेंज करके ग्रुप कर दिया सारे नंबर्स को। अभी क्या करना है, आपको जो टर्म फॉर्म दिया हुआ है उसी टर्म्स का आपको यूज़ करना है यहाँ पे, और उसी का फॉर्मेशन आपको यूज़ इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे दिया आपको -2/3 इंटू 3/5 -3/5। अभी अगर आप 3/5 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 3/5 एज इट इज़ कॉमन अगर चला जाएगा, उसमें आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या फॉर्मेशन यहाँ पे रह सकता है। जैसे 3/5 मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है, उसको हम कॉमन ले सकते हैं, 3/5 दैट इज टेकन इज द कॉमन। सो हमारे पास रहेगा -2/3 और वहाँ पे उसके फॉर्मेशन में -1/6 प्लस 5/2 हो जाएगा। तो 3/5 को हम कॉमन ले सकते हैं। ये 3/5 को आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे दोनों में कॉमन है तो। सो 3/5 टेकन इज अ कॉमन। सो रिमेनिंग है -2/3, ये -3/5 आएगा तो -1 रहा, -1 इंटू 1/6 -1/6 और लास्ट में रहेगा आपका प्लस 5/2। ऐसी वैल्यू मिलेगी आपको 3/5। अभी क्या करेंगे, -2/3 और -1/6, 3 और 6 का आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 3 और 6, इसका एलसीएम आपको अप्लाई करना पड़ेगा 3 और 6 का। सो लेट एलसीएम ऑफ 3 एंड 6, एलसीएम क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। इन दोनों का डिनोमिनेटर अगर बैलेंस करना है तो एलसीएम क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। तो यहाँ पे एलसीएम 6 अप्लाई करेंगे। सो 3/5 इन ब्रैकेट, यहाँ पे 6 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो -2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2 -1 इंटू 1 अपॉन 6 इंटू 1 प्लस 5/2, राइट। So therefore 3/5 upon -4 upon 6
-1/6 plus 5/2. So therefore 3/5 into -5/6 plus 5/2, राइट। तो ऐसे सारे टर्म्स आपने लिख दिए। 3/5 एज वेल एज द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इसके सारे टर्म्स आपने यहाँ पे लिख दिए। अभी हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। वी नीड टू बी मल्टीप्लाई दिस टर्म्स। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेशन जो डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्मेशन उसका आप यूज़ कर सकते हैं। 3/5 माइनस 5/6 प्लस 5/2 आप इसका यूज़ करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले आप एलिमिनेट कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग मेथड। तो 5 और 5 एलिमिनेट हो जाएगा, 3 2 6। सो -1/2 प्लस 5/2, दोनों का डिनोमीटर सेम है तो ऐड कर दीजिए 4/2, आंसर आपको क्या मिलेगा 2। तो आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का अगर आप यूज़ करते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, आंसर विल बी 2। तो इस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अलग अलग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके यू जस्ट फाइंड द वैल्यू। तो ऐसे आप वैल्यूज़ को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, ऐसे वैल्यूज़ को आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो एकदम इजी रहा। कैसे वैल्यूज़ को फाइंड करना है, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6, दैट कैन बी इजीली फाइंड आउट इन अ स्पेसिफिक फॉर्म, जिसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी नंबर्स है तो उसके लिए इस तरह के मेथड्स जो है जिसका आप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दी है, उस प्रॉपर्टीज़ को इजीली बैलेंस करके उसका मल्टीप्लाई करके या फिर जो भी प्रॉपर्टीज़ है एसोसिएटिव लगे या डिस्ट्रीब्यूटिव, उसका यूज़ करके आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अभी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा, ताकि आपको क्लियर हो कैसे फाइंड आउट करना है आपको, फिर हम उसको आगे मूव करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके कैसे वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, फिर हम दूसरे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। एक और टॉपिक डिस्कशन करेंगे वहाँ पे, जैसे एक फॉर्म यूज़ करते हैं जिसमें हमें दिया है कि 2/5 इंटू -3/7। ये एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल 2/5 इंटू -3/7, ठीक है। देखिए इसमें अलग अलग टर्म्स दिए होंगे, 2/5 इंटू -3/7, -1/6 इंटू 3/2, -1/6 इंटू 3/2। तो ये तो 4 टर्म्स हो गए। 5th टर्म्स में आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। चलिए एक क्वेश्चन मुझे दिया है, एक क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अभी ये सारे टर्म्स मुझे अरेंज करने हैं, तो इसको कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले तो 3/2 1/6 वहाँ पे है, उसको लास्ट की तरफ लेंगे, 2/5 को आगे मूव करेंगे ताकि 2/5 आपको कॉमन मिल जाए, और -3/7 को वहाँ से इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले तो इसको प्रॉपरली अरेंज करते हैं। यहाँ पे कैसे अरेंज करेंगे, बाय रीग्रुपिंग। उसको रीग्रुप करेंगे, उसको आप रीग्रुप करिए। रीग्रुपिंग टेक्निक से आप अगर उसका यूज़ करेंगे, बाय द रीग्रुपिंग 2/5 इंटू -3/7 इंटू 2/5, राइट, प्लस 1/14 -1/6 इंटू 3/2। पहले मैंने इसे प्रॉपरली उसको एक सिंपल फॉर्म के अंदर अरेंज कर दिया है। 2/5 इंटू -3/7 इंटू 2/5 प्लस 1/14, ठीक है, ऐसे उसको अरेंज किया आपने। 2/5 को अगर आप कॉमन लेते हैं वहाँ से, इफ विल टेक 2/5 एज अ कॉमन, तो क्या रिमेनिंग रहेगा आपके पास, -3/7 रहेगा, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, 1/14 रहेगा, राइट। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से 2/5 को अगर आप कॉमन लेंगे यहाँ पे, सो 2/5 आपका कॉमन हो गया, इंटू ब्रैकेट में रिमेनिंग होगा -3/7 प्लस 1/14, राइट। यहाँ पे हमारे पास 1/6 इंटू 3/2। चलो इतना लिख दिया आपने, पहले प्रॉपरली अरेंज कर दिए सारे टर्म्स को और मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हमारे पास -1/6 इंटू 3/2 है, और आगे हमारे पास है 7 इंटू 14। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे टर्म्स को एलसीएम लेके 7 और 14 का बैलेंस करना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 7 एंड 14 इज इक्वल टू क्या होगा, 14। एलसीएम ऑफ
7 and 14 इज इक्वल टू 14, राइट। तो इस एलसीएम को 14 है तो यहाँ पे इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको। सो देयरफॉर 2/5 इंटू ब्रैकेट में 14 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 14 इंटू 1 -1/6 इंटू 3/2। ये तो 3 और 6 क्या हो जाएगा आपका, दैट शुड बी 3 2 6, 3 2 6। सो देयरफॉर 2/5 इंटू -6 अपॉन 14 प्लस 1 अपॉन 14 माइनस 1/4, 2 2 4। So therefore 2/5 into -6 plus 1 -5 -5/14 minus 1/4, राइट। इतना लिख दिया आपने। देखो 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आप इसको रिड्यूस करते जाओगे तो आपको आंसर यहाँ पे आ रहा है 2/5 इंटू -5 अपॉन 14। अब ये मल्टीप्लीकेशन है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, 2 7 14, राइट। सो रिमेनिंग टर्म इज -1, इट इज -1 अपॉन 7 एंड -1 अपॉन 4। यहाँ न्यूमरेटर में कोई भी टर्म नहीं है तो आप इसको क्या लिखोगे, -1। सो -1 अपॉन 7 एंड -1 अपॉन 4। तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको, 7 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 28। एलसीएम ऑफ 7 and 4 इज इक्वल टू 28। तो इसको बैलेंस करेंगे अभी 28 के फॉर्म में। सो देयरफॉर -1 इंटू 4 अपॉन 7 इंटू 4 -1 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 7। सो -4 अपॉन 28 और -7 अपॉन 28। सो -4 -7 अपॉन 28, सो इट शुड बी -11 अपॉन 28। आंसर क्या मिलेगा आपको, -11 अपॉन 28। तो ऐसे आप जो अप्रोप्रिएट फॉर्म्स है जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आगे हम डिस्कशन करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स के बारे में। तो कैसे आप वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। देखो ये सारे टॉपिक्स आपने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, उसी का रिवीजन है कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज केवल इतना ही रखेंगे। व्हेन वी मीट टुमारो देन वी डिस्कसिंग अबाउट हाउ वी कैन फाइंड the numbers as a part of multiplicative inverse or additive inverse, as well as how it can be represented onto the number line. Only today we'll discussing about what is the natural numbers, whole numbers, set of integers, real number, as well as rational and irrational, and how that can be used as a number line. Also we are discussing about the properties in which closure property, commutative property, distributive property and associative property, and how using that property we can find the values, okay. So when we meet tomorrow then we'll discussing about the multiplicative and additive inverse of the integers as well as the rational numbers, okay. Bye.